I really focused on searching for various languages, and I found that Japanese is a very rare and a very unique language in terms of its scripts. What do you think that why at present time people have started talking about Japan? क्या Japanese language is mandatory to study in Japan? सो जापान में दो तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जो ऑफर करती हैं और एक जो जापानीज में प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं. If I talk about Germany, institutes are offering कि if you come and study with us, English में पढ़ाएंगे, but we'll also give you some level of German language, absolutely free. So क्या ये culture है जापान में? फॉर जेन ज़ी सब कुछ तो है जापान में, क्या नहीं है. मतलब यू वांट सिक्योरिटी, यू वांट सेफ्टी, यू वांट जॉब अपॉर्चुनिटीज, यू वांट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यू वांट दैट एरिना टू ग्रो वेयर पीपल आर giving you your own respected space to grow. So I feel that it's a perfect country. What are the 5 courses you will suggest जो students वहाँ जाके पढ़ें and then they have a very good job opportunities after that course? A lot of people are these days going for MBA as well in Japan, and Globus University is one of the universities. They are offering MBA program and they offer very good internships and placements. If a student is able to do part time जो उसको legally hours दिए गए हैं, अगर वो पूरा कर पाते हैं काम, so definitely they can easily give their rent, then food cost will also be covered, and apart from that थोड़ा आपके पास travel के लिए भी scope रहता है. Indian students के लिए what is the admission criteria in universities located in Japan? हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ काम करते हैं 1400 येन से 1500 येन भी मिलता है, और अगर उसमें आप थोड़ी अनयूजुअल शिफ्ट्स करते हैं जैसे लेट नाइट शिफ्ट्स हैं तो वहाँ आपको अप टू 1800 येन भी मिल जाता है पर आवर. क्या यहाँ पे फ्री एजुकेशन का भी कल्चर है? I am a living example. I went on scholarship, 100% scholarship. So for me it was totally free. What is the fees? कितनी एक एवरेज फीस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को चाहिए? Are there any interviews student has to go through for universities or high commission? What about कि अगर हम लैंग्वेज स्कूल के लिए जा रहे हैं, क्या उसका वीज़ा कितना ईजी है और डिफिकल्ट है? I would say 99% success rate we have seen over these years. You can easily find a job for yourself if you are proficient in Japanese language. Welcome to the another episode of Trans Global Overseas Education. Today we have a founder of Nihonka Institute, Ashima. Welcome to the podcast. Today we have a ground reality check for studying in Japan and how Japanese language can change your career. So Ashima, welcome to the podcast, and let's start with how you have came into this picture of studying Japanese language when nobody was doing Japanese language, and how did you start this Nihonka Institute? So first of all, thank you so much for having me here. And yes, your question actually made me go back to my journey where I started with my Japanese language study back in 2005. And yes, at that time, not many people were going for East Asian languages like Japanese or Chinese or Korean. So there were very few people. However, that time I just cleared my 12th exam and was looking for a good career option, as I was from engineering background and I always wanted to be an engineer. However, that gap of examination and result period, that gave me some time to think about it, that okay, which career should I choose? And in that period, I really focused on searching for various languages, and I found that Japanese is a very rare and a very unique language in terms of its scripts. So Japanese, as you might be knowing, that it has pictorial script called kanji, which came from China. Okay. So it's known as Chinese script, Chinese characters. And that really fascinated me, and my dad also supported me, saying that Japanese culture is very, very unique in terms of hospitality, in terms of respect for fellow human beings. So yes, all those things gave me a good boost to just go and try. Got it. So yes, that was the start of it. So Ashima, why we are here is a lot of students when come to Trans Global Overseas for getting counseling for studying abroad,
एंड जो अभी मर्ज हो रहा है फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज और द टॉप 5 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, लोगों का शिफ्ट हो रहा है टू स्टडी इन जापान. अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट वी हैव शूट फॉर हंगरी. Okay. तो लोगों को बताया कि वाई हंगरी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ शेंजन कंट्री एंड ऑल. सो जो इंक्वायरीज हैं for studying in Japan and all these. So we thought that we'll invite you here, and because you are the one who has started this Japanese language culture. Yes. Secondly, you have also done research in Japanese language in Osaka University, which is one of the renowned university. And thirdly, because we wanted to have a joint venture with someone who's have a expertise in Japanese language, plus you have spent lot of years in Japan, so उससे ज़्यादा ground reality किसी के पास है नहीं. और यहाँ पे बैठ के when we counsel students have lot of questions which कि Japanese language का culture, because हमने तो हमेशा जब भी जापान के बारे में बात होती है we always talk about technology, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी सबने देखी है कि how they are have टेक्नोलॉजी उनके कैसे उन्होंने वर्ल्ड में दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन दैट. सो दैट इज़ द रीज़न हमें ग्राउंड रियलिटी चेक करना है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो जा रहा है व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ स्टडी, पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब्स, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज, जो सारी कंट्रीज़ में यूजुअली होता है. दैट इज़ द रीज़न. इट्स आर प्लेजर कि आपने अपना टाइम दिया है यहाँ पर. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज what do you think that why at present time people have started talking about Japan, कि उन्होंने कैसे ये स्टडी अब्रॉड के लिए लोग अब हमसे इंक्वायरीज पूछ रहे हैं एंड हाउ वी कैन डू दैट. सो आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताओ व्हाई इट इज़ मर्जिंग. सो थैंक यू सो मच. आई थिंक आपका ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरी सॉल्व करेगा. So I would like to definitely give my insights on this based on my career of 21 years into this language. So as I told you, I started Japanese language जब बहुत कम लोग इसको सीखते थे. और क्योंकि सब लोग यूरोपियन कंट्रीज़ और यूरोपियन लैंग्वेजेस की तरफ मेजरली रेफरल का भी बहुत एक रहता है ना. मेरे फ्रेंड ने जर्मन किया तो मैंने भी किया, और मेरे फ्रेंड्स स्पेनिश कर रहे हैं तो मुझे भी करनी है. सो दैट कम्युनिटी बस फिर वहीं ड्रिफ्ट होती चली जाती है. और जब हम जापानीज़ लैंग्वेज की बात करते थे तो बैक देन हमारे बैच में कुछ ही स्टूडेंट्स थे और बहुत कम बैचेस हुआ करते थे उस समय कॉलेज में. आई स्टार्टेड माई स्टडी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड वी यूज्ड टू हैव वेरी फ्यू बैचेस ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज एंड अ लॉट ऑफ बैचेस वर अराउंड यूरोपियन लैंग्वेजेस. हाउएवर धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे लोगों ने जापान के बारे में जाना तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आया कि जापान भी एक ऑप्शन हो सकता है. एंड स्पेशली जब उन्होंने कॉस्ट कंपैरिजन करना शुरू किया. सो अमाउंट ऑफ फीस व्हेन यू थिंक अबाउट स्टडिंग इन जापान एंड स्टडिंग इन सम अदर कंट्री, डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है. सो इवन फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन who can easily afford the tuition fee of studying in Japan. So definitely we'll get into more details regarding that. And मुझे लगता है Japan, as you rightly said, they are famous for their Japanese, they are famous for their technology. However, one thing which I would like to add, because I went to Japan at the age of 21. So at that time, going from a country, our country, India, and you know how law and order and everything is here. I mean, going to Japan, initially there were lot of hiccups. Okay, ये कंट्री कैसी है, क्या है, बट जैसे जैसे आपको वहाँ के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पता चलता है, you are in awe of that country, that wow, I mean, even if you're walking around at 2 a.m. at night, you know that nobody will, bother you. Yeah. In terms of being a female, I think that's one of the major reasons why I, really like being in Japan. So now that I live there, and it feels like so safe and secured, and law and order is also in place, which makes it even more, the inclination is like you have more inclination to live there. And moreover, I feel that Japanese people are also very warm and very helpful and supportive. So as long as you are following the rules of that country, they would be really in harmony and happily supporting you. And of course, being a citizen of your own country, when you go to another country, you take the responsibility that, Indians ऐसे होते हैं. Absolutely. That image
because as you know, Japan में time, punctuality is one thing that they, you know, Yes. follow. And second thing, systems are in place. आप उनका ट्रेन सिस्टम भी देख लेंगे तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी है वहाँ पर सर्वाइव करना, as long as you know the language. So many people think language is a barrier. I would say language is a support system. Yeah. If you learn the language, you can be friends with locals, number one. You can get so many options in terms of job opportunities. आप काम कर सकते हैं, आप दोस्त बना सकते हैं जापान में, आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं क्योंकि आप समझ पाएंगे जापान के कल्चर को और ज़्यादा. तो मुझे लगता है कि अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज एक बार सीख लें, एक बार की मेहनत है, बट उसके बाद फिर आपकी लाइफ वहाँ ईजी हो जाती है. This is a right point because when we counsel students, parents भी आ रहे हैं. So the first question arises about the security only. और security, when you talk about safety and security, and I'm glad you have told that कि वो safest है. Yes. और आज की डेट में जब students जा रहा है तो वो यही देखता है कि भाई security है, Yes. safety है, the culture is good. He will definitely choose the country. When I talk about Nihonka Institute of yours, so what do you guys offer in that? What level of language and how do you offer? What is your faculty and all about? So I would really like to tell more about Nihonkai. Nihonkai, a Japanese language institution. So we are the pioneers in Japanese language. And it was established back in 2009. And since then, we are trying to, make sure that students who are coming to us, they are being served with quality education. And the USP of our institution is that each one of the students who is relying on, Nihonkai for their education, and the parents, they have some expectations and hopes that they come with. So we really want them to feel happy when they complete their course. So we offer from basic till advanced. Okay. So right from the basic course that you start with, and it offers you the scripts and the basic understanding, and it takes you to the advanced level, which helps you to get the placements as well. That's good because this is what our long-term goal is. Yes. कि जो भी student Nihonka इससे अपनी education complete कर लेता है, and then we come in the picture of getting him admission in Japan, visa formalities, helping in education loan. That is the reason ये एक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जापानीज लैंग्वेज भी करनी है और अपना जो करियर है वो जापान में बनाना है. एंड वंस दे स्टार्ट देयर जर्नी, आई होप कि दे विल बी happy for that. Yes, absolutely. As you rightly said, happiness is something which is very, very important, because learning comes when it comes with joy. You are learning something, rote learning कर रहे हैं या बस करने के लिए कर रहे हैं, versus जब आप कोई चीज़ को खुशी से करते हो कि आपको पता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन अप होने वाली हैं. एंड एज यू आस्क्ड अबाउट द फैकल्टी ऑल्सो, आई वुड लाइक टू से दैट वी हैव इंडियन एज वेल एज नेटिव फैकल्टीज. सो इंडियन आपके कॉन्सेप्ट्स, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा और इवन स्टूडेंट्स को भी, कि जापानीज़ लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो हमारी हिंदी ग्रामर के साथ पैरेलल है. सो जैसे हम हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का करते हैं, सो सिमिलरली जापानीज़ में भी है. तो हमें बीइंग इंडियंस, स्पेशली नॉर्थ इंडियन जिनकी हिंदी मदर टंग है, सो उनको ज़्यादा सोचना नहीं है. आप बस हिंदी में सोचें और आप जापानीज़ में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. सो सीखने वाले के लिए वर्बल मतलब कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सिंपल भी हो सकता है. हाँ, लोग बहुत आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि जापानीज़ बहुत टफ है. करेक्ट. राइट. तो वो टफ सिर्फ स्क्रिप्ट्स की वजह से है, क्योंकि राइटिंग पार्ट में बहुत मेहनत लगती है, एंड वंस यू डू इट देन यू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग. सो येस, एंड हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब स्टूडेंट अपने दिल से लैंग्वेज को सीखता है, उसमें कंसिस्टेंटली मेहनत करता है, सो लॉट ऑफ एवेन्यूज ओपन अप, नॉट ओनली इन जापान बट इन इंडिया एज वेल. And Japan to hai. Obviously. So when we talk about studying in Japan, जैसे हम और countries की बात कर रहे हैं जिसमें एक English examination करके IELTS, TOEFL, there are SAT, lot of examinations are there जो English speaking country में चाहिए. So when we talk about Japan, do we require this kind of test, first thing, and secondly, स्टूडेंट्स जिनको पता ही नहीं है कि भाई मेरे को बस उनको पता है, या फिर दे आर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट एंड
उन्होंने ये इंटरेस्ट देखा कि आई वांट टू स्टडी इन जापान. सो फॉर हिम और क्या जापानीज लैंग्वेज इज मैंडेटरी टू स्टडी इन जापान? सो आपके क्वेश्चन में से मैं दो पार्ट्स में उसको आंसर करना चाहूँगी. फर्स्ट इज़ इंग्लिश का कोई टेस्ट अगर रिक्वायर्ड है कि नहीं. सो जापान में दो तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जो ऑफ़र करती हैं और एक जो जापानीज़ में प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं. और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में जब आप जाते हैं तो येस, सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विल आस्क फॉर योर आइल्स और टोइक और लेट्स से सच एग्जामिनेशन. एंड जब आप जापानीज टॉट प्रोग्राम में जाएंगे तो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा या जो आपके इनिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें आपको जापानीज लैंग्वेज मैंडेटरी होती है. तो स्टूडेंट हु इज़ नॉट विलिंग टू गो टिल द एडवांस लेवल ऑफ जापानीज बिफोर एंटरिंग इनटू जापानीज टॉट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी, सो दैट स्टूडेंट कैन गो फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स. तो उस केस में आप आइल्स भी काम करता है. ओके. सो जैसे अभी हम एडमिशन्स करा रहे हैं बहुत सारी यूरोपियन नेशंस में, और वहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे इफ आई टॉक अबाउट जर्मनी में इंस्टीट्यूट्स आर ऑफरिंग कि इफ यू कम एंड स्टडी विद अस, इंग्लिश में पढ़ाएंगे बट वील ऑल्सो गिव यू सम लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज एब्सोल्युटली फ्री, और माइट बी दे आर चार्जिंग. सो क्या ये कल्चर है जापान में? यस. इवन आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ वो लोग के पास जापानीज टॉट प्रोग्राम्स हैं या इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, सम क्लासेस आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. क्योंकि आप पढ़ाई तो इंग्लिश में कर रहे हैं बट वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर क्लासरूम यू नीड टू नो द लोकल लैंग्वेज. एब्सोल्युटली. आप सोशलाइज करेंगे, आप पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे तो और भी एक्टिविटी, मतलब हाउ आर यू गोइंग टू नो द कंट्री? आप कंट्री को तभी जान सकते हैं डेप्थ में जब आपको लैंग्वेज आती है. तो यूनिवर्सिटी भी कोई चार्जेस के बिना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, जो आपके कोर्स के साथ कुछ एडिशनल क्लासेस आपको मिल जाती हैं. इनफैक्ट वहाँ के जो गवर्नमेंट, जैसे आप सिटी ऑफिस है, इन सब के द्वारा भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि कुछ क्लासेस कंडक्ट होती थी. कोविड से पहले तो ये बहुत होता था, आफ्टर कोविड काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन स्टिल ऐसी सर्विसेज हैं. फिर कुछ ऐप्स होती हैं, है ना, जिसको स्टूडेंट्स अगर एक्सेस कर सके तो वो उसके थ्रू भी जापानीज़ फ्रेंड्स बना लेते हैं. तो आप उनको इंग्लिश सिखाते हैं और वो आपको जापानीज़ में बात करते हैं. तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सपोर्ट रहता है, प्लस कुछ स्टूडेंट कम्युनिटी भी बन जाती है, तो उसके थ्रू दे रियली हेल्प यू इन लर्निंग जापानीज़ लैंग्वेज. सो व्हेन वी आर काउंसलिंग स्टूडेंट्स, अभी मेरा ये क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट से आया था कि व्हेन वी गो टू, बिकॉज वो जापान गया हुआ था और वो फर्दर अपनी स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ढूंढ रहा था, और उसका एक जापानीज़ भी, जापान भी मतलब एक डेस्टिनेशन था, बट ही वाज आल्सो एक्सप्लोरिंग अदर कंट्रीज़. सो उसका ये क्वेश्चन था, या माई क्वेश्चन है कि व्हेन यू गो टू जापान, रियल लाइफ जो वहाँ पे है, तो वो कहता है कि जापानीज़ अगर आपको आ रही है, ऑब्वियसली जैसे आपने बताया इट इज़ गुड, बट व्हाट इफ अ स्टूडेंट want to speak in English only, so क्या उसको वहाँ पे difficulties आने वाली हैं, not in even part time but roaming the cities or exploring other options, या फिर apps वगैरह में, because I have studied abroad, I have friends for Japan, China, उनके phone पे you can't go and see anything because they'll वो अपनी language में ही उन्होंने सारी apps और पूरा phone उनका उन्हीं की language में है. So पहले तो ये था कि they don't want to speak in English, वो अपनी language को ही प्रमोट करते हैं, बट क्या वो चेंजेस आए हैं अब? वेल, सो जापान बीइंग अ कंट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्री, सो यस चेंजेस आए हैं. पहले अगर हम देखें तो जापानीज पीपल वर नॉट वेरी ओपन, है ना, इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए. और आपको पता ही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से पूरा जैसे वो डेवस्टेटेड थी सिचुएशन. सो उस वजह से क्या था, एक क्लोज्ड कम्युनिटी सी बनती चली गई, एंड अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, एंड नॉट रियली वेलकमिंग टुवर्ड्स फॉरेनर्स. तो फॉरेनर्स के लिए उतना वेलकमिंग नहीं थे. बट धीरे 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 जैसे वो ट्रेड शुरू हुआ, पोर्ट्स ओपन हुए, सो फॉरेनर्स आने लगे और कैसे फिर वो इंटरेक्शन बढ़ता चला गया. तो आज भी अगर आप टोक्यो, ओसाका ऐसे शहरों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने वाले जापानीज़ भी मिलेंगे, स्पेशली ऐसे जापानीज़ जिनको वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है, जो दूसरी कंट्रीज़ में गए हैं. कुछ जापानीज़ जो इंडिया आए हैं और इंडिया को सच में पसंद करते हैं, सो दे रियली आर वेलकमिंग टुवर्ड्स इंडियंस. मुझे पर्सनली ऐसे बहुत सारे जापानीज़ मिले और आज भी मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे जापानीज़ हैं जो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं और इंडियंस को भी.
सो उनके साथ जब आप बात करते हो, कुछ कुछ वो हिंदी में बोलना का ट्राई करते हैं, कुछ इंग्लिश में ट्राई करते हैं, तो उनके साथ बात करना उन स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाएगा जो इंग्लिश स्पीकिंग हैं। अब ये लेकिन सबके साथ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कंट्री साइड की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ आपको इंग्लिश बोलने वाले जापानीज़ तो नहीं मिलेंगे। वहाँ आपको डेली बेसिस पे फील होगा कि काश मैंने थोड़ी जापानीज़ सीख ली होती तो मैं इनसे और बात कर पाता। नहीं तो एटलीस्ट इतना तो सीख लेना है कि आप एक कॉम्बिनी यानी कि कन्वीनियंस स्टोर जा रहे हैं और आपको कुछ खरीदना है, मान लीजिए। अगर वो सेल्स पर्सन इंग्लिश नहीं जानता, क्योंकि इट कुड बी वो जानता होगा, इट कुड बी वो नहीं जानता है, तो इन दैट केस अगर आपको बेसिक आता होगा तो कुछ एफर्ट वो करते हैं अपनी तरफ से और कुछ एफर्ट हम करते हैं, तो दैट्स हाउ यू बिल्ड अप अ कम्युनिकेशन। सो आई वुड रियली सजेस्ट एवरीवन, आजकल तो हम ऐप से भी सीख सकते हैं और यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है। बैक देन when we started तो इतने resources ही नहीं थे। You have to go to a proper place and then study. And these days you have so much access. Translation you can do on Google. So थोड़ा effort जब हम करते हैं तो जापानीज लोग तो definitely आगे से बहुत welcoming होते हैं। Great. So as far as my knowledge is concerned is कि जापान में जो age factor है, it is the most population is above 70 if I'm not wrong. So if I talk about our Gen Zs, which is between अब जो students doing their class 12th examinations और जो अभी 10th से लेके 12th के बीच में है, अगर वो भी सही जापानीज लैंग्वेज शुरू कर दे सीखना, एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है 12th का, और इवन आई वुड से स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, दे somehow when they come to us for counseling, वो ये जरूर काउंसलिंग लेना चाहते हैं फॉर जापान एज अ कंट्री। सो व्हाई दे आर लाइकिंग इट, व्हाट आई मीन, अगर हम अलग जो यूरोपियन नेशंस हैं, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, उससे हट के बात करें तो व्हाई दे आर लाइकिंग इट? सो अगर हम जेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो भी आपको एक एरिना चाहिए होता है ना ग्रो करने के लिए। यू नीड योर ओन स्पेस, योर ओन फ्रीडम नॉट इन टर्म्स कि हमारे पास इंडिया में फ्रीडम नहीं है, बट एक मेंटल फ्रीडम जहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा, एंड यू आर डूइंग योर ओन ट्रायल एंड एरर्स एंड यू आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू विदाउट, ऑफ कोर्स आप दूसरे को तंग नहीं कर रहे हैं, बट आप अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो दैट मेंटल फ्रीडम इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, वेयर आई फील दैट सो व्हेन यू थिंक ऑफ जापान एज अ कंट्री, नंबर 1 वो सेफ कंट्री है, तो आपको कोई ये बैक ऑफ द माइंड, यू आर नॉट स्ट्रेस्ड दैट ओके कुछ हो जाएगा या कुछ एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल, एंड एज लॉन्ग एज आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग एज अ गुड सिविलियन, देन नथिंग bad will happen, right? And of course their law and order is very strong. So, and second thing, I feel that cutting edge technology of Japan. Yeah, that's the main thing. When you talk about AI or robotics, or for that matter automobile hi dekh lijiye, even in India you have Toyota and Honda, after Suzuki, even Suzuki with Maruti is a Japanese JV, right? So I feel that for Gen Z सब कुछ तो है जापान में, क्या नहीं है। मतलब you want security, you want safety, you want job opportunities, you want cutting edge technology, you want that arena to grow where people are giving you your own respected space to grow. So I feel that it's a perfect country. So in order to add to it, I would say that आपने आजकल बहुत सुना होगा Naruto, Doraemon. I'm saying Doraemon because that's the correct pronunciation in Japanese. Yeah, and Doraemon बोलते हैं. Yes. So when you talk about Naruto and Shinchan तो बच्चों को शरारती भी बना रहा है आजकल. But every household knows these names, right? Every family is aware that okay, ये जापान से आए हैं। Families who has kids, yes, वो तो 100% one of the most watch channel है। Yes, and पहले उतना तो नहीं था ना, आपने भी नहीं देखा होगा। तो एनिमे और मांगा इज लाइक रिटन, जो कॉमिक्स होती हैं उसकी बात करें तो इसमें जापान लीडिंग है ना। तो लीडिंग है, तो उस वजह से जब वहाँ जाके जेनजी अगर हम बात करें या यंगस्टर्स की बात करें, तो वहाँ जब आप जाकर वो कल्चर देखते हैं एंड यू स्टडी और यू काइंड ऑफ गेट सम कोर्सेज,
you get very good opportunities. As a manga artist, as animation में आप जा सकते हैं. और आपने देखा होगा कि इंडिया में काफ़ी लोग एडिटिंग और VFX Very true. है ना, और मैक और एरिना हमारे यहाँ कितने फेमस हैं. सो यहाँ से जो लोग कोर्सेज भी करते हैं, तो सिमिलरली वहाँ काफ़ी स्कोप नज़र आता है. However, language again is Plays a required. vital. Yes, plays a vital So, role. Ashima, let's do a quick rapid fire. If I would wanted to know what are the 5 courses you will suggest जो students वहाँ जाके पढ़ें and then they have a very good job opportunities after that course. So very popular 5 courses Yeah. if you ask me. One is animation. Yeah. Because after that you get really good jobs. Okay. Second one is AI robotics you can go for. Third is liberal arts international relations में आप जा सकते हैं. Number 4 अगर आप language को भी master कर लेते हैं along with your graduation that you have done. So yes, and IT courses are also very much in demand. And quickly name 5 good universities where the acceptance rate, especially for Indian students, are very high. So I would like to name a few of it. Yeah. So one is TIU, which is Tokyo International University, and then we have Ritsumeikan University. Then we have Asia Pacific University. So like these, we have some university, and when we talk about MBA, and a lot of people are these days going for MBA as well in Japan. And Globus University is one of the universities they are offering MBA program, and they offer very good internships and placements. Yeah. Now, when we talk about studying in Japan, there are a lot of factors. क्योंकि हम लोग जब we are doing visa filing, counseling, career counseling even, बहुत सारे questions students के और parents के होते हैं. Now, when we talk about the reality check, my question would be कि जब हम जापान में पढ़ने के लिए एडमिशन अप्लाई करते हैं इंडिया से, क्या वहाँ पे मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है? आई मीन फ्रॉम अदर कंट्रीज पीपल आर स्टडिंग, या फिर जापान के लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, या फिर इंडियंस ज़्यादा पढ़ रहे हैं? सेकेंडली, व्हाट इज़ द एक्सेप्टेंस रेट कि इंडिया की जो एजुकेशन है वहाँ पे कितनी एक्सेप्ट की जाती है? बिकॉज यहाँ पर तो एवरी स्टेट यू गो देयर आर यूनिवर्सिटीज अवेलेबल. Right. Section 1, Section 2, Section 3 में universities divided है. So if I talk about Delhi, so Delhi University है, IP University, which are famous. Right. But ये तो famous universities हैं. But बहुत सारे student हैं जिन्होंने open learning से पढ़ाई करी हुई है, जिन्होंने other states में, UP में जाएंगे, there are a lot of medical engineering colleges जो हमें भी students आते हैं तो हमें नहीं पता वो वहाँ पे situated है. If I go to South, वहाँ पे universities इतनी सारी हैं कि हमें भी Google पे डाल के check करना पड़ता है, is it legit or not. So what is the acceptance rate for Indian students there? Okay, so first question is your international environment, which Yeah. I would like to answer. That yes, they offer you proper global environment because you have students from all over the world, and Japanese students भी होंगे और international students भी होंगे, which will give Indian students a very good stage to showcase their talent and to come up with their best of the skills. Can you name few countries जहाँ के students वहाँ पे ज़्यादा आते हैं? So China, Korea, Taiwan, then you have countries from Europe, you will have Okay. people from France, Germany, you'll have people from the US. So almost all the countries, yes. And Philippines, then you have people from, I think while we were studying, so yes, I had a lot of friends from all over. Yeah. In Osaka University, there were students from all over the world. Taiwan, Korea, China. And because एक student level पे आप बड़ी जल्दी friends भी बन जाते हो और आप बहुत कुछ सीखते हो दूसरे culture के बारे में. तो students के लिए बहुत अच्छा एक exposure है. और believe me, that Japan में आप जब हैं तो एक अलग ही environment है. Very harmonious and very, अगर आप I don't want to name any of the countries or Yes. something, but when I really want to tell about Japan, I personally feel it's a very safe and a harmonious place to be. Very pleasant, and that gives you ease of mind that you are at the right place. So Ashima, give us some example
कि आपका कोई इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट गया हो जिसने आपको वहाँ पे जाके कॉल करा और बोला कि ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, और आफ्टर 3 months व्हेन यू अगेन टुक हिज रिव्यू अबाउट दैट कंट्री तो उसका बिल्कुल चेंज हो गया हो वो? Okay. रीसेंट एग्जाम्पल कोई भी हो? So I would like to give you a very specific example from the recent successful cases. So एक स्टूडेंट जो कि वहाँ जाते हुए जब गए पहुँचे और स्टार्ट करी स्टडी, तो उसके बाद में लाइफ थोड़ी टफ लगी क्योंकि वहाँ तो सब कुछ ही आपको खुद ही मैनेज करना है. अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी आपको अपना घर भी मैनेज करना है और सब मैनेज करना है. देयर यू मिस इंडिया, बिकॉज इन इंडिया यू हैव अ कंफर्ट जोन. यू नो, आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ कर देते हैं, ऑलमोस्ट सभी कुछ कर देते हैं इन जनरल केसेस, एंड आपको बस पढ़ाई करनी है और क्या करना है इंडिया में. एंड यू हैव डोर टू डोर सर्विस, आपको कैब सर्विस, अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटी, यू नो, ट्रांसपोर्टेशन वाइज भी यू आर एट ईज. बट जापान में चलना भी बहुत पड़ता है क्योंकि ट्रेन स्टेशंस आपके घर से थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं. दूसरी चीज़, आप जाते ही अपना एक व्हीकल अफोर्ड कर लेंगे ऐसा भी नहीं है. तो इनिशियली क्या है ना, आपको चैलेंज लगता है कि बहुत चलना है और दोस्त नहीं है, दोस्त वापस अपनी कंट्री में रह गए हैं, तो डेफिनेटली आपको फील हो रहा होता है कि आप वहाँ पर अकेले हैं. तो वो जो स्टार्टिंग के 1-2 महीने थे उनके, वो बहुत लोनली थे या थोड़े टफ थे. बट जब वही फीडबैक आपने लिया 3-4 महीने बाद, तो लाइफ ईजी हो चुकी थी, वो यूज टू हो चुके हैं अब, और इट्स लाइक कि हाँ अब तो बहुत अच्छा लग रहा है. और वॉक करने से क्या हो रहा है, हेल्थ भी बेटर हो रही है. अब वही चीज़ें जो पहले चैलेंज लग रही थी, नाउ वो अब अपॉर्चुनिटीज़ लगने लग जाती हैं, या वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा होता है. तो क्योंकि 3 महीने 6 महीने रहने के बाद क्या रहता है कि आप उस कल्चर से और उन लोगों से भी थोड़ा यूज टू होने लग जाते हैं, एंड यू स्टार्ट लाइकिंग इट समवेयर. आप ट्रेन में भी एंटर करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया कि आप ट्रेन में भी एंटर करेंगे तो नोबडी इज़ बॉदर्ड आपने क्या पहना है, आप कैसे दिख रहे हैं, नोबडी इज़ जजिंग यू. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इतना ईजी जापान में होने को ही आप इंजॉय करने लग जाते हैं. सो वही स्टूडेंट्स अब ऐसे हो गए हैं कि अब वो उस जगह को इंजॉय करते हैं, और क्योंकि अब फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, सो स्टडी में भी अब थोड़ा सा, हाँ, यस. सो नाउ इतने साल से काउंसलिंग करने के बाद जो सबसे मेन क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट का, कि जब वो बाकी सारी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, विच इज़ द अगेन 5 countries एंड देन यूरोपियन, कि वहाँ पे पार्ट टाइम कल्चर है, कि आपको जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, सिर्फ यू हैव टू गो टू मैक्सिमम 3 days एंड देन रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डू योर असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रेजेंटेशंस एंड देन पार्ट टाइम. व्हाट इज़ द कल्चर इन जापान? क्या वहाँ पे कितने यूनिवर्सिटी, कितना टाइम उसको जाना है, कहाँ पे वो पार्ट टाइम कर सकता है, What is the minimum wage rate if you can tell in brief कि ये wage rate है, अपना वो खर्चा खुद निकाल सकता है accommodation, lodging, fooding का? Because ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100%, मैं 99 भी नहीं बोलूँगा, जो पूछना ही पूछना है स्टूडेंट्स ने. तो पहले हम पहले वाली क्वेश्चन को आंसर करते हैं. कितनी क्लासेस होती हैं वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, और क्लासेस ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा ही दिन ऑक्यूपाइड रहते हैं. कई बार आपके लेक्चर्स कम हैं, वो आप क्या लेक्चर्स आप सेलेक्ट करेंगे, कितनी क्लासेस होंगी, उस पर डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे. और फिर आपकी कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, या आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास बहुत टाइम होता है, और आप लीगली पर वीक 28 hours पार्ट टाइम कर सकते हैं. So legally you are allowed to do 28 hours of part time, which is like 112 hours in a month. और जब छुट्टियाँ आती हैं, for example when you have summer break, when you have golden week break, when you have other holidays, then you are allowed to do 40 hours. Okay. So this 28 hours फिर वहाँ पर वो 40 hours में change हो जाता है. So that gives you even more ease कि आप अर्न करेंगे तो आप अपने लाइफस्टाइल पर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं. और आपने बात की लॉजिंग की और फूडिंग के बाद जो उनके पास क्या अमाउंट आता है, तो आई वुड से दैट इफ़ अ स्टूडेंट इज़ एबल टू डू पार्ट टाइम, जो उसको लीगली आवर्स दिए गए हैं, अगर वो पूरा कर पाते हैं काम, सो डेफिनेटली दे कैन ईजिली गिव देयर रेंट, देन फूड कॉस्ट विल ऑल्सो बी कवर्ड वेरी स्मूथली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा आपके पास ट्रैवल के लिए भी स्कोप रहता है.
एंड येस आप कैसे रहते हैं उस पर बहुत मैटर करता है. इफ़ यू आर लिविंग अ नॉर्मल, आई मीन एक आई एम नॉट सेइंग कि बहुत फ्रूगल होके रहना है या बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट होना है. आई वुड से एक आप डिसेंट लाइफस्टाइल भी करते हैं ना, तो सम अमाउंट यू कैन सेव. हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ही शेयर किया कि मैम हम अर्न करने के बाद इतना भी कर लेते हैं कि सब कुछ पे कर दिया एंड देन वी आर एबल टू ट्रैवल ऑल्सो. सो दे आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर जापान. करेक्ट. सो वो स्टूडेंट पर है कि वो कैसे. और आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, वो शेयरिंग में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तो शेयरिंग में जब आप रहते हैं तो कॉस्ट भी शेयर हो जाती है. बिल्कुल. योर बिल्स, योर अदर कॉस्ट्स आर शेयर्ड, which gives you an edge that yes, you can manage your expenses. Absolutely, because every student wants कि वो अपना खर्चा खुद निकाले, Yes. बर्डन ना हो पेरेंट्स पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर कोई घूमना चाहता है. व्हेन दे ट्रैवल तो उसको उसके कल्चर के बारे में दे नेटवर्किंग जो हम बोलते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी अब्रॉड कंट्री, इवन इन इंडिया. तो अगर आप घूमोगे ही नहीं, यू विल नॉट हैव गुड फ्रेंड्स, यू विल नॉट हैव गुड कलीग्स, सो यू डोंट नो द कल्चर, सो देयर इज नो यूज सिटिंग इन अ रूम एंड जस्ट गोइंग टू स्टडी. प्लस स्टूडेंट लाइफ में आपके पास स्कोप है, आप घूम सकते हैं. वंस यू स्टार्ट विद योर जॉब इन जापान देन यू विल गेट बिजी. हाउएवर ऑन वीकेंड्स यू हैव टाइम, ऑन लॉन्ग वीकेंड्स यू हैव टाइम, बट स्टूडेंट लाइफ में आपके पास और भी स्कोप है कि यू कैन जस्ट गो अराउंड विद योर फ्रेंड्स. करेक्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिशन क्राइटेरिया इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, what is the admission criteria in universities located in Japan? So admission criteria, when you talk about universities, majorly they ask for 12th pass, and if you have any other additional qualification that adds on to your profile, because if you have completed some, let's say आपने कोई English exam दिया हुआ है, IELTS दिया है, या आपने जापानी सीखी है, तो ये सब आपके एड-ऑन्स होते हैं. तो मेजरली जो आपका क्राइटेरिया रहेगा दैट इज 12th अंडरग्रेड के लिए. What is the criteria, percentage criteria? So for bachelors, you are required to have your 12th. And if you have passed some certifications like Japanese exam आपने दिया है, आपने English जैसे IELTS हो गया, TOEIC हो गया, तो ये सब आपके लिए एक एड ऑन है आपकी प्रोफाइल के लिए. And some universities, as I mentioned, if they have it as a criteria, then you have to provide And it. percentage requirement? Percentage requirement is 60% above can apply. Okay. And what about masters? Masters, you need to have an undergrad, and yes, 60% above Is the requirement? Yes. Okay. So when we talk about other countries, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, वहाँ पे there are universities and then there are small, I would say TAFE colleges, which is famous for प्लम्बर, ये जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए कोर्सेज बने हुए हैं, बट उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाता. व्हाट अबाउट जापान? अगर हम अदर यूनिवर्सिटीज की अपार्ट बात करें, तो व्हाट आर देयर आर एनी स्कूल्स देयर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लैंग्वेज स्कूल बहुत हैं जापान में. व्हेन वी से लैंग्वेज स्कूल, तो आपके मन में ये भी आ सकता है कि लैंग्वेज तो वो इंडिया में भी सीख सकते हैं. व्हाई टू लर्न लैंग्वेज इन जापान? स्पेशली लैंग्वेज स्कूल के लिए कोई क्यों पे करेगा? लैंग्वेज स्कूल के लिए आप सिर्फ वहाँ लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, आप ओवरऑल एक्सपोजर लेते हैं. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ईयरली बेसिस पर लैंग्वेज स्कूल में जाते हैं, तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफस्टाइल सपोर्ट एंड देयर एप्लीकेशन सपोर्ट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज स्कूल, इट्स समथिंग दैट इज देयर ऑल ओवर जापान, राइट फ्रॉम होक्काइडो टू क्यूशू, मतलब नॉर्थ टू साउथ. आप देखेंगे बहुत सारे लैंग्वेज स्कूल्स हैं. उसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल रहता है, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट रूट. एक स्टूडेंट के लिए इससे ईजी रूट नहीं हो सकता जापान में स्टडी करने का. तो जब आप लैंग्वेज स्कूल में जाते हैं तो आपको बस 12th पास होना चाहिए. अगर आप ग्रेजुएशन आपने की है तो वो आपसे जापानीज प्रोफिशिएंसी नहीं मांगते, लेकिन अगर आप 12th पास हैं तो आपका N5 इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल, वो क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ईयर बाय ईयर इमिग्रेशन लॉज आर ऑल्सो चेंजिंग एंड नाउ दे रिक्वायर एटलीस्ट दैट सर्टिफिकेशन. पहले वो सर्टिफिकेशन एक मैंडेट नहीं होता था, बट नाउ यू नीड टू हैव N5 एटलीस्ट, एंड 12th पास N5 यू कैन अप्लाई फॉर इट. So once he passed from language school, उसके पास opportunity है कि उसको language भी मिल गई, skilled आ गया. Yes. Apart from that, he can go to university and take the admission. After language school, he has 2 options. Rather, I would say he has 3 options. One, अब जैसे ये मैं आपको बहुत रियलिस्टिक केसेस से बता रही हूँ, ये सिर्फ थ्योरी पे नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स ने वो पाथ फॉलो किए हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग.
अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लैंग्वेज स्कूल में गए, मान लीजिए वो N5 N4 करके गए और उन्होंने आगे लैंग्वेज पढ़ी, 1 साल पढ़ी मान लेते हैं। 1 साल के बाद उन्होंने पार्ट टाइम, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि पार्ट टाइम ऑप्शंस मिलते हैं 28 आवर्स इन अ वीक, दैट काउंट्स टू 112 आवर्स इन अ मंथ। और आप ये मान के चलिए कि 1000 to 1200 येन पर आवर दे गेट। सो वो बंदा इजीली अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर सकता है। Can you name some areas where a student can work part time? यस, कन्वीनियंस स्टोर्स लाइक 7-Eleven, फैमिली मार्ट, लॉसन, इन पे तो आप कर ही सकते हैं, बट इसके लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कस्टमर के साथ डील करना है। Absolutely. एंड जहाँ कस्टमर के साथ डील नहीं करना, बहुत सारे ऐसे वेयर हाउसेज हैं जैसे अमेजोन और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके वेयर हाउसेज में आपको लैंग्वेज का उतना यूज़ नहीं है। तो इवन इफ आपकी बेसिक लैंग्वेज है, आपको काम समझा दिया जाता है और वहाँ के वेज रेट्स भी बहुत लुक्रेटिव है। फॉर एग्जाम्पल आप हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ काम करते हैं 1400 येन से 1500 येन भी मिलता है। और अगर उसमें आप थोड़ी अनयूजुअल शिफ्ट्स करते हैं जैसे लेट नाइट शिफ्ट्स हैं, तो वहाँ आपको अप टू 1800 येन भी मिल जाता है पर आवर। So Ashima, tell me कि जैसे यूरोप में कल्चर है फ्री एजुकेशन का which is called 100% scholarship, तो क्या if student is having a good grade क्लास 12th में above 90 या ग्रेजुएशन में सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी के 70-80% है, तो कैन ही ऑप्ट फॉर अ फ्री एजुकेशन? एंड सेकेंडली इफ yes, that's good. If not, then what are the usual scholarship Japanese university provides to Indian students? So to this question, I would like to give my own example, that I am a living example. I went on scholarship, 100% scholarship, and my education was totally on the government. So for me, it was totally free. Got it. Yes. And also there is any stipend university pay you? Yes, we used to get 1,40,000 yen per month as a stipend. Okay. Yes, and in which a student can easily, I mean, you can imagine, आप बहुत अच्छे से उसको कैलकुलेट भी करेंगे अगर फूडिंग और अकोमोडेशन और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, तो भी एक स्टूडेंट बहुत आराम से उसमें रह सकता है। एंड यूजुअल स्कॉलरशिप बताओ कि यूनिवर्सिटीज कितनी देती है जो इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन करने के लिए वहाँ जाएंगे? सो जब आप चाहे ट्यूशन फीस पे करके भी जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की कुछ अपनी जैसे स्कॉलरशिप रहती हैं और वो आप अप्लाई करते हैं तो आपको मंथली बेसिस पर कुछ अमाउंट, जैसे किसी को 30,000 येन मिल गया, किसी को 50,000 है, वो स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप वेरी करता है। कई बार ट्यूशन फीस में 30% वेवर हो गया या 50% हो गया, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन विच स्कॉलरशिप यू आर अप्लाइंग, बट देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स। सो फीस से डिडक्ट हो जाएंगी? यस। एंड एक फीस का वो बताइए आप कि व्हाट इज द फीस, कितनी एक एवरेज फीस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को चाहिए? सो व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज एनुअल फीस, इसमें हम बहुत एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं कोट कर पाऊंगी, बट एक नॉर्मली हम देखते हैं चाहे वो लैंग्वेज स्कूल है या वो यूनिवर्सिटी है, समवेयर अराउंड 5 to 7 lakh पर एनम इज द average fees that we can take. 5 to 7 lakh INR. INR, yes. So now let's talk about the visa rules and regulations. How easy is the visa for Indian students? What is the rejection rate? Are there any interviews student has to go through for universities or high commission? Okay, so पहले हम यूनिवर्सिटी को लेते हैं इसमें, फिर हम लैंग्वेज स्कूल पर भी आएंगे क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पर आप अपने प्रोफेसर्स के साथ, अंडर ग्रेड में उतना नहीं होता बट मास्टर्स में ज़्यादा होता है, बिकॉज मास्टर्स में आप अपना रिसर्च प्रपोजल एट्सेट्रा प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपने टीचर्स के साथ जो वहाँ पर आपको असिस्ट करेंगे तो उनके साथ आपकी इंटरेक्शंस होती हैं, तो वहाँ पर इंटरव्यू और कुछ रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड इंटरेक्शंस होती हैं। वंस यू गेट योर COE एज अ स्टूडेंट, इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन वीज़ा। सो आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अप टू द मार्क हैं, उसमें कोई किसी तरीके की फॉल्स अगर डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक हैं तो देन नो प्रॉब्लम। Okay. And So we language, can assume that it is 100% if your documents are. एब्सोल्युटली। सो अगर आप यूनिवर्सिटी में सेल्फ फंडेड उसमें जा रहे हैं तो आपका जो वो ITR और जो बैंक बैलेंस होना चाहिए और सब कुछ लेजिट है, देन देयर इज नो पॉइंट कि आपका वीज़ा कैंसिल होगा। Okay. And what about कि अगर हम लैंग्वेज स्कूल के लिए जा रहे हैं, क्या उसका वीज़ा कितना ईजी है और डिफिकल्ट है?
I would say 99% success rate we have seen over these years. Okay. 1% क्यों मैं आपसे बोल रही हूँ? Because sometimes कहीं information mismatch है या कहीं डॉक्यूमेंट्स में हमें कुछ बोला गया, मान लीजिए प्रेजेंट किए गए, बट वो डॉक्यूमेंट्स लेजिट नहीं है, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई. So that 1% chance I am just saying. No problem. Otherwise, That is a reasonable. 99% language school में भी, and if your documents are correct, 100% in That's a language huge school. amount of success rate. Yes. Okay. So to wind up all this conversation, let's talk about the career opportunities in Japan. So student ने bachelor's खत्म कर ली या masters कर ली. Let's take an example कि उसको Japanese language का basic level आता है और उसने वहाँ से he has done medical course or even I would say engineering, BBA, MBA. What are the career opportunities in Japan कि उसको कितना post study work visa मिलता है अपनी job ढूंढने के लिए, और when you go for an interview वो इंग्लिश में होगा या जापानीज लैंग्वेज में होगा. अगेन द क्वेश्चन इज दिस, एंड व्हाट आर द वेज रेट, मतलब फुल टाइम जॉब का क्या वेज रेट आता है? So many things you have asked in one single question, so I'll go one by one. सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन ही जापान से किया. तो जब आप ग्रेजुएशन, एज यू नो दैट जापान इज़ एन एजिंग सोसाइटी, सो दे नीड लॉट ऑफ यंगस्टर्स एज देयर वर्क फोर्स, एंड they are so happy to hire people who have already studied in Japan. क्योंकि जैसा आप जानते हैं इंडियन कल्चर और जापानीज कल्चर थोड़ा डिफरेंट है. रूट्स में हमारी कॉमनैलिटीज़ भी बहुत हैं, बट क्योंकि कल्चर डिफरेंट है, अब जो 3-4 साल वहाँ रहकर पढ़ाई करके रेडी हुआ है, तो उनके लिए दैट पर्सन इज़ अ परफेक्ट केस दे कैन कंसिडर. सो आई फील दैट वहाँ पर जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ईजी हो जाती है वर्सेस अगर आप डायरेक्ट फॉरेन से अप्लाई करते हैं जॉब के लिए. और लैंग्वेज स्कूल में आप जाते हैं तो N2 करने के बाद भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो यू गेट अ जॉब. अगर आप मास्टर्स करते हैं तो ऑफ कोर्स हायर पैकेज से आप प्लेस हो जाते हैं. अब आपने पूछा कि इंग्लिश में इंटरव्यूज़ होते हैं या जापानीज़ में होते हैं. अगर आप टिपिकल जापानीज़ कंपनी में जाएंगे तो जापानीज़ में इंटरव्यू होगा. फॉर दैट जापानीज़ लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड. अगर आपका स्किल कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि जहाँ जापानीज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड दे ऑलरेडी हैव एन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट इन देयर कंपनी, दे विल कंसिडर यू विदाउट MNCs and all. Yes, Okay. अमेरिकन कंपनीज हैं, Correct. राइट, और कंपनीज हैं जहाँ पर आपको नहीं चाहिए. बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी क्या है कि नॉर्म्स आर चेंजिंग. तो अगर आप जापान में हैं तो आप ज़रूर, चाहे आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए, बट आप जापानीज लैंग्वेज अगर स्टडी करते हैं, इट गिव्स यू एन एज ओवर अदर्स. Okay. You can easily find a job for yourself if you are proficient in Japanese language. Got it. And the most interesting question is कि स्टूडेंट ने वहाँ पढ़ाई कर ली और वो वापस आके इंडिया में जॉब करना चाहता है विद लैंग्वेज स्किल, उसका क्या करियर स्कोप है इंडिया में? Right now, if you see all over India, we have so many Japanese companies. And they are seeing India as an emerging market. So many Japanese companies are you can say, are on their way to India. Yeah. So अगर कोई स्टूडेंट इंडिया आ भी जाए वापस और उसको लगता है कि नहीं मुझे अपनी कंट्री में रह के काम करना है, तो उसके लिए भी बहुत ऑप्शंस हैं. आई टेल यू, अगर एक N2 क्लियर ग्रेजुएट पर्सन है, he can easily get a salary of 60 to 70,000 per month in India. I'm talking about Just for translation. ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, या उन्होंने जापान से ऐसा कोई कोर्स किया. अभी जैसे मैंने आपको 5 कोर्सेज बताए थे, उसमें से मान लीजिए वो कोई कोर्स करके आते हैं, तो वो स्किल के साथ वो अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं. One more question which is students generally ask कि when a student is on study visa or even post study work visa, how easy to get him a sponsor? I mean वहाँ पे कंपनी स्पॉन्सर कर देती है स्टूडेंट को, and how long it takes to get a permanent residency there, or I would say क्या वहाँ पे कल्चर है ये permanent residency या फिर उनका अपना सिटीजन बनने का? So once the student is done with their studies in Japan, they can, next step for them is work visa. And work visa की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. जैसे कि अगर जापान की मैं बात करूँ तो SSW है और इंजीनियर वीज़ा है जिसको गिजिन कोकू बोलते हैं. तो इन वीज़ाज़ का अपना एक क्राइटेरिया रहता है. इफ़ यू फुलफिल द क्राइटेरिया यू कैन ईजिली स्विच द वीज़ा स्टेटस. एंड इसमें आपको कंपनी ही सब प्रोवाइड करती है. कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर इट. तो स्टूडेंट को सिर्फ वो क्राइटेरिया मीट करना है.
एंड पीआर की अगर हम बात करें तो 5 इयर्स तक मान लीजिए अगर आप अपना एक स्कोर मेंटेन करते हैं तो पॉइंट सिस्टम पे आपको पीआर भी इजीली मिल जाता है. Okay, which is, and what do they give citizenship as well? Yes, they do give citizenship if you fulfill the criteria. Got it. It's a great conversation between us, and I'm 100% sure कि आज हमने सारे boxes tick करे हैं जो students अब even Japanese language studying in Japan, wanted to know more about culture part-time. You have answered all the questions, and we are glad to have a joint venture with you where Nihonkai will come in the picture when it comes to learning of all the level of Japanese language, and Trans Global will come in a picture when he is looking for admissions in Japan, visa opportunities, and even we'll give them support even when they land there, because you guys are there, you will help in part-time, full-time jobs and making the network easy for you. Last message, what do you want to give to the viewers of what is the last message you want to go if student is looking to study in Japan, and why do they come to us and take the services from both of us? I think if you are looking for a good country, good education, good support, so we are here. Because Japan, अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज जानते हैं और ऐसी कंट्री जाना चाहते हैं जहाँ पर ईज़ ऑफ माइंड है और प्लस आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, I think Japan is the destination. So my advice to them is just, pour your heart out into the learning part. And rest you can leave on us. We can take care of it. So I'm 100% sure कि इसके बाद हमारे पास और आपके पास इसी studying in Japan की जो queries होंगी, we'll give them the best of our services. Absolutely. Which we are doing from past 10-15 years, both of us, and let's see how it works in the coming time. And we hope that हम उनको पूरी services दे पाएं in terms of everything which requires from language till visa and after support. Or let's do a quick tour also. आप तो वहाँ रहते ही हो, we'll also try to come there and see how it works. Thank you very much for giving your precious time to us. Thank you so much. And my advice to students would be that please consider Japan as one good option for their future, and give us a chance to support you. Absolutely. And we would definitely give you the best services. Great. Thank you.